Namaste Gurgulians, how are you dear students? Hope you will be fit and fine. So again I am here in front of you. We will discuss class 12th accountancy and chapter 5 dissolution of partnership firm is going on. So dear students, we were discussing the journal entries at the time of dissolution. Earlier we have discussed second question. Now next is third question. It is also relating to journal entries. Open your books, students. This is the new book of D.K. Goyal and open page number 6.11. Page 6.11. It is illustration number 3. Pass necessary journal entries on the dissolution of a partnership firm in the following cases. So first prepare the format. First, dissolution expenses were rupees 800. It means these are expenses paid by the firm. So you will record to the debit of realization account to bank. The entry will be realization account debit to bank. Amount is 800. Write the narration, realization expenses paid. Second, dissolution expenses rupees 800 were paid by Prabhu, a partner. When realization expenses are paid by the partner, we record to the debit of realization account to partner's capital. The entry will be realization account debit to Prabhu's capital. Amount is again 800. Write the narration, dissolution expenses paid by Prabhu. Third, Geeta, a partner, was appointed to look after the dissolution work, for which she was allowed a remuneration of 10,000. उसका remuneration 10,000 है. Geeta agreed to bear dissolution expenses. Actual dissolution expenses 9,500 were paid by Geeta. जब गीता को रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए कमीशन मिल रहा है, तो जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो अपनी पॉकेट से खुद पे करेगी. दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अब 9,500 वर पेड बाय गीता, वी विल नॉट रिकॉर्ड बिकॉज इट वाज हर लाइबिलिटी, बट द रेम्यूनरेशन ऑफ गीता यू विल रिकॉर्ड टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, तो रेम्यूनरेशन इज 10,000, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to Geeta's capital account, 10,000. This is the entry for remuneration paid to Geeta by the firm. It is expense of firm, that's why realization account is debited. So actual expenses paid by Geeta, so that will not be recorded because it was her liability. Fourth, Janki, a partner, agreed to look after the dissolution work for a commission of rupees 5,000. जानकी है, एक पार्टनर है, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस डिसोल्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स करेगा उसके बदले में उसको कमीशन मिलेगा 5,000. जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जो खर्च होंगे रियलाइजेशन के लिए वो पे करेगा. एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज 5,500 वर पेड बाय मोहन, अनदर पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ जानकी. जानकी के बिहाफ पर एक दूसरे पार्टनर मोहन ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करे 5,500. तो जो जानकी का कमीशन है दैट इज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. तो डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट
5,000. Actual expenses were 5,500 paid by मोहन. जब मोहन ने पे करे हैं, इट वॉज नॉट हिज लाइबिलिटी, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए. जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट में जाके उसको पेमेंट हो जाएगी. तो क्रेडिट मोहन्स कैपिटल बाई 5,500 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 5,500. ओके. तो ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 5,500, ये लाइबिलिटी थी जानकी की. अब जानकी को 5,000 कमीशन मिलना था, उसने 5,500 पे कर दिए, तो वो तो कैंसिल होगा. इसके अलावा जो 500 रुपये मोहन ने पे करे हैं एक्स्ट्रा जानकी की तरफ से, तो 500 से हम जानकी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसको पे नहीं करने पड़े. इतने अमाउंट से उसका जो कैपिटल का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, हम डेबिट कर देंगे. जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500. दिस विल बी द एंट्री. 5,000 जानकी का कमीशन है, दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म, सो वी हैव डेबिटेड रियलाइजेशन अकाउंट. एक्चुअल में एक्सपेंस हुए 5,500, जानकी को 5,000 कमीशन मिल गया, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करे तो हमने डेबिट कर दिया, उसके अकाउंट से कट जाएंगे. इसके अलावा मोहन ने पे करे 5,500, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, दैट विल बी ही विल गेट, क्योंकि उसका कैपिटल क्रेडिट जाएगा, वहाँ से पेमेंट होगी. ओके. फिफ्थ, ए पार्टनर कविता agreed to look after dissolution process for a commission of rupees 9,000. कविता है एक पार्टनर, उसको कमीशन मिल रहा है 9,000, इसके लिए वो डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है वो लुक आफ्टर कर रही है. सी आल्सो एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ 9,000 फॉर हर कमीशन. फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. अब जितना उसका कमीशन है उतने अमाउंट का उसको फर्नीचर मिल गया, तो वो डेबिट में शो करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस उसको कमीशन क्रेडिट में. बोथ विल बी कैंसल टू ईच अदर, तो देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि जानकी को एक बार रियलाइजेशन की डेबिट में शो करो, एक बार क्रेडिट में शो करो, तो कैंसिल हो जाएगा. जानकी डेबिट टू जानकी, या दो एंट्री हो जाएंगी, रियलाइजेशन डेबिट टू जानकी 9,000 एंड जानकी डेबिट टू रियलाइजेशन 9,000. तो बेटर वी शुड नॉट पास एनी एंट्री, तो राइट हियर नो एंट्री. Sixth, a debtor Ravinder for 19,000 agreed to pay the dissolution expenses which were 18,000 in full settlement of his debt. अब डेटर है रविंदर, उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए वो एग्री हुआ है 19,000 के लिए, और ये पे कर दिए एक डेटर ने फुल सेटलमेंट में 18,000. तो फर्म के लिए तो इक्वल होगा, वो पे करना था डेबिट में, वो उतना ही डेटर से कहा गया, डेटर नो नीड टू पे. अब क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में शो करते हैं, डेटर से कलेक्ट क्रेडिट में करते हैं, तो फुल सेटलमेंट में वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए. अगेन देयर विल बी नो एंट्री. ओके. तो वी हैव पास्ड द जनरल एंट्रीज. स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू that first we will do some numericals, and on the basis of which entries we will record later. So we have discussed entries. Numericals we have solved up to 10. Now we will continue. Question number 11 you are to do yourself. आप खुद करेंगे question 11. We will start from 12. This is page number 6.31. Illustration 12.
Following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2018. Balance sheet is given, profit sharing ratio is not given. So they will share profits and losses equally, 1-1. So balance sheet is given. First of all, transfer all the assets to the debit side of realization account. So prepare realization account. Assets are cash in hand, cash at bank. These are already realized. Stock in trade, 5,000. So 2 stock. Investments, 10,000. 2 investments. Then debtors, 20,000. So 2 debtors. Provision is given, so you will record provision to the credit side by provision. 2,000. Plant 20, building 15. 2 plant, 20,000. 2 building, 15,000. Then goodwill, you will also transfer the goodwill to the debit of realization. If it is given at last that goodwill is realized to the credit by bank, otherwise keep it left. तो हमेशा आप goodwill realization की debit में transfer करोगे. 4,000, तो 2 goodwill. Advertisement suspense, it is undistributed loss, so it will be transferred to the debit side of partners capital account. Now transfer liabilities. Sundry creditors, 30,000, credit side by sundry creditor. Bills payable, 8,000 by bills payable. Mrs. A's loan, Mrs. B's loan. Mrs. A and B are not partners, so you will transfer loan of partner's wife to the credit and again will make payment to the debit side. So by Mrs. A's loan, 5,000. And Mrs. B's loan, 10,000. Then journal reserve, transfer to the credit of capital accounts. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, भाई इसके लिए रूल ये है, अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप रियलाइजेशन की क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में शो करोगे. देखो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं तो यू विल रिकॉर्ड इट टू द क्रेडिट. इसकी पेमेंट नहीं होगी कहीं, इट इज़ ए प्रॉफिट. अब यहीं से टोटल हो गए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 1,000 by investment fluctuation reserve. Now realize the assets and pay the liabilities. See adjustments. Number 1, A promised to pay off Mrs. A's loan. A Mrs. का लोन पे करेगा, तो जब भी एक पार्टनर लाइबिलिटी पे करता है यू विल रिकॉर्ड टू द डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. तो टू A's कैपिटल, Mrs. loan. Mrs. A's loan is 5,000. And took away stock in trade at 4,000. उसने स्टॉक कोई असेट ले ली पार्टनर्स ने, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल. तो बाई एज कैपिटल स्टॉक. $4,000. B adjustment. B took away half of the investment at 10% discount.
तो बाई बीज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट्स, अब इन्वेस्टमेंट्स थी 10,000 की, हाफ कितनी हुई 5,000, तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट 500 डिस्काउंट कितने मिली 4,500। इसका अमाउंट तब शो करेंगे कोई और एसेट ली है बी ने तो वो भी इसमें ऐड करें। सी डेटर्स रियलाइज 19,000 इंक्लूडिंग बैड डेट्स रिकवर्ड 6,000, तो सारे रियलाइज कर लो बाई बैंक 19,000, तो बाई बैंक। बैलेंस शीट में दोनों हैं, कैश भी है बैंक भी, आप किसी से भी एंट्री कर सकते हो। तो डेटर्स रियलाइज 19,000, then creditors and bills payable were due on an average basis of 1 month after 31st March। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट 1 महीने बाद करनी थी, बट दे वर इमीडिएटली पेड ऑन 31st मार्च एट 6% डिस्काउंट पर एनम। भाई अगर ये डिस्काउंट ओनली 6% गिवन है तो आप 6% निकालोगे पूरे साल के लिए, क्योंकि पर एनम वर्ड यूज़ नहीं किया। जब उसने पर एनम वर्ड यूज़ कर लिया तो 1 मंथ के लिए निकलेगी। अब ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर इंटरेस्ट रेट वो पर एनम गिवन है, ये डिस्काउंट का रेट जैसे इसमें है, तो 1 मंथ्स के लिए। पर एनम वर्ड यूज नहीं हुआ, 6% का मतलब एक फिक्स रेट है, फिर आप 1 मंथ्स के लिए नहीं निकालोगे। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 30,000, 1 महीने बाद पे करने थे, अभी पे कर दिए तो वो डिस्काउंट मिल गई 6%, तो 6% और 1 मंथ के लिए। तो 150 होगी, तो 30,000 में से 150 लेस कर दो, ये होगा 29,850। ओके, टू बैंक क्रेडिटर्स 29,850। इसी तरह बिल्स पेबल थे 8,000, 6% डिस्काउंट फॉर 1 मंथ, तो 40 है, 40 लेस 8,000 में से 40, तो ये हो जाएंगे 79,60, 79,60 टू बैंक बिल्स पेबल। देन ई प्लांट रियलाइज्ड 25,000, तो बाय बैंक, दिस इज बाय बैंक, प्लांट 25। बिल्डिंग 40,000, तो बाय बैंक बिल्डिंग 40। गुडविल 6,000, तो बाय बैंक गुडविल। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि हाफ तो उसने ले ली थी ना इन्वेस्टमेंट्स, किसी पार्टनर ये थी, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन, ये बी ने ली थी, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश में रियलाइज हुई 4,500 इन्वेस्टमेंट्स। There was an old typewriter in the firm which had been written off completely from the books. It was estimated to realize 300. कोई टाइपराइटर था, बुक से हटा दिया था, अब वो रियलाइज होगा 300 रुपये में। एंड इट वाज टेकन अवे बाई बी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस, वो बी ने ले लिया। जब कोई पार्टनर असेट को ले लेता है तो हम क्रेडिट में शो करते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल, बी था ये, बाई बीज कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ली थी उसने, एक टाइपराइटर भी ले लिया। वो कितने में लिया? 300 में, 300। तो बी ने ये 2 असेट ली, इन्वेस्टमेंट और टाइपराइटर, 4,800। इसके अलावा बाकी असेट्स ये हैं
तो आप इसका टोटल कर दो, 5 असेट्स हैं 94,500। और लायबिलिटी की पेमेंट, अब लायबिलिटी के लिए ये है, सम लायबिलिटीज में बी गिवन इन एडजस्टमेंट दैट आर पेड और टेकन अवे बाय पार्टनर। अगर किसी लायबिलिटीज के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू विल पे एट बुक वैल्यू, प्रोविजन पे नहीं होगा। क्रेडिटर्स के लिए बोल दिया, बिल्स पेबल के लिए भी वो 6% डिस्काउंट पे कर दिए। मिसिज एज लोन था 5,000, वो मिस्टर ए ने पे करा है टू एज कैपिटल। अब मिसिज बीज लोन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू विल पे एट बुक वैल्यू थ्रो बैंक। तो टू बैंक मिसिज बीज लोन 10,000, मिसिज बीज लोन, तो टोटल 118, 117, 14। ओके, तो नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस द रियलाइजेशन अकाउंट। तो इट विल शो ए प्रॉफिट। टोटल ऑफ क्रेडिट इज 159,300. Write the same total here, 159,300. Deduct all these items, so it will be profit. To profit, partners are A, B, and profit is 32,490. To distribute in profit sharing ratio not given, then equally to A, B. तो distribute equally 16,245 each. Okay. Now you will prepare partners capital account. There are 2 partners, so prepare 2 columns. A, B. So first take capital balances. Capitals of A and B are 10,000 each. Credit. Capital balances are shown to the credit side by balance BD. Now in balance sheet some items we have left, जैसे जनरल रिजर्व था, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व डेबिट टू ए बी इक्वल रेशो, तो 10,000 है, 5,000 ईच बाई जनरल रिजर्व 5,000। और असेट साइड में था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो डेबिट में जाएगा। 3,500 है तो 1,750 ईच टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और अब रियलाइजेशन से देखो, एक तो इसका प्रॉफिट है, एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो रिकॉर्ड टू द क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। $16,245 each. Now see, A took over stock at 4,000, B took over 2 assets. Entry for this is A's capital debit, B's capital debit to realization. तो A B की डेबिट में शो कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। A 4,000 and B this one 4,800.
लाइबिलिटीज आर पेड बाई पार्टनर्स ए ना कैपिटल मिसिज एज लोन पे करा, एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो ए कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा बाई रियलाइजेशन, ए के कॉलम में 5000 बाई रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ मेक पेमेंट, क्रेडिट टोटल ज़्यादा है तो पे कर दो, तो इट विल बी 36,245 and 31,245. Write the same total debit side, 36,245, 31,245। तो जो भी बैलेंस आएगा टोटल में CLS करके पे कर दो टू बैंक, टोटल माइनस दीज टू आइटम्स, तो इट विल बी 3495 और 20 कॉलम 24,695 ओके। एट लास्ट प्रिपेयर बैंक अकाउंट। अब जो बैंक का बैलेंस है, राइट टू बैलेंस BD, इन बैलेंस शीट बैंक बैलेंस इज 8000, जबकि कैश बैलेंस भी है, अब इसको बैंक में ट्रांसफर कर दो, एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू कैश, तो डेबिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट 500, और जो कैश आया है बाई सेलिंग असेट्स, ये था टोटल एक जगह अमाउंट हमारा, एंट्री है बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 94,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो पेमेंट करी है एक जगह की हमने टू बैंक, ये देखो 3 आइटम्स थे, एंट्री है रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक दिस अमाउंट, तो क्रेडिट में बाई रियलाइजेशन। इसके अलावा हमने कैपिटल की पेमेंट की है, एंट्री है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिट में बाई एज कैपिटल। दिस वन 30,495, और बी को पेमेंट करी ये 24,695 बाई बीज कैपिटल। टोटल कर दीजिए, टोटल ऑफ बोथ साइड शुड बी इक्वल, तो इट विल बी 1,03,000। सेम हियर 1,03,000 ओके। तो वी हैव डन क्वेश्चंस अप टू 12। यू आर टू सॉल्व practical questions from exercise in your fair notebook. After it we will continue in next video lectures. Till then, goodbye students, have a nice day.